میں اکثر کہتا ہوں کہ طوفان نوح لانے سے اے اشک فائدہ کیا، 2 بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ تو اثر کرنے کے لیے 2 بوند ہی بہت ہے۔ ماں باپ وہ نعمت ہے، ماں باپ کو اللہ نے ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے، ماں باپ کا منصب اتنا بلند و بالا ہے، مجھ جیسا کمینہ کم علم کم ظرف کیا بیان کر سکتا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو، میں تو کچھ پڑھا بھی نہیں، لیکن جب بزرگوں کے قریب گیا اور ان کی جوتیوں کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھا تو احساس ہوا کہ یقیناً ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کی دعا میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے، آپ فرمان مصطفیٰ سے جانے۔ ہمارے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں جنت کی چوکھٹ ہے۔ محبت سے کہہ دو، نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں جنت کی چوکھٹ ہے، اور صرف ماں کے ہی تعلق سے نہیں بلکہ جب باپ کا منصب اور اس کا مقام بیان کرنا ہوا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اگر تمہاری ماں جنت کی چوکھٹ ہے تو سن لو تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم یہ بہترین مکان آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، آپ مکان بناتے ہیں، دیواریں مکمل ہو جاتی ہیں، چھت کا انتظام ہو جاتا ہے، اور جب پورا کام مکمل ہو جاتا ہے تو ہم اپنے گھروں کے اندر ایک دروازے کا انتخاب کرتے ہیں، ایک دروازہ لگاتے ہیں۔ میں نے جناب وسیم مشاہدی صاحب سے پوچھا کہ بھائی مکان تو مکمل بن کر کے تیار ہو گیا، زمین سے لے کر چھت تک اب کوئی کام باقی نہ رہا، آخر اب اس میں دروازہ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ دروازہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کی جانب سے جواب ملا، غلام احمد رضا، ہم اپنے گھروں میں دروازہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو سامان ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو مال و اسباب ہے وہ محفوظ رہے چوروں سے بھی، اور ویسے بھی اس کی حفاظت ہوتی رہے۔ اے مولیا کے سنی جنتی مسلمانوں، غلام احمد رضا کے یہ چند جملے سختی دل پر اگر آپ نوٹ کر لو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ملے گی، اور کل بروز قیامت ہم کامیاب و کامرا رہیں گے۔ دنیا سے اپنے مال کو بچانا ہوا تو ہم نے اپنے دروازے پر، اپنے مکان کے اندر ایک دروازہ لگا دیا، پتہ یہ چل گیا کہ اگر دروازہ بند کر دیا جائے تو آپ مکان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، آپ کا داخلہ مکان کے اندر نہیں ہو سکتا، آپ کی انٹری مکان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ پتہ یہ چل گیا، معلوم یہ ہوا کہ مکان کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ اے مویا کے حسینی غلاموں، ابھی بھی نہیں سمجھو گے، میرے نبی نے فرمایا تمہاری ماں جنت کی چوکھٹ ہے اور تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں گے تو میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، یہ علماء بیٹھے ہیں، آج بھی حدیث شریف کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا، میں نہیں میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اگر تم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا چاہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، تو سب سے پہلے تمہیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا، سب سے پہلے تمہیں اپنے ماں باپ کو خوش کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ جملہ کھٹکتا ہو تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں حضور مشاہد ملت کا غلام ہوں، میری نسبت سرکار حضور مشاہد ملت سے ہے، میں نہ لفاظی کرتا ہوں اور نہ لفاظی کرنے کا قائل ہوں۔ ایک ایک جملے کی دلیل میرے جیب میں موجود ہے۔ میرے بھائی حضرت حافظ
कारी अख्तर हुसैन साहब किबला जो हमारे साथियों में से है। ये अलग बात है कि आप तरक्की कर गए और मैं कुछ ना कर सका, ये तो बुजुर्गों की निगाह इनायत है कि आज मैं आपके सामने चंद जुमले कहने की जसारत करता हूँ। और हदीस शरीफ के चंद कलमात सुनो। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए तो सबसे पहले हमें अपने माँ बाप को राजी करना होगा। मालूम ये हुआ, पता ये चल गया कि माँ बाप की रजा में ही अल्लाह उसके रसूल की रजा है। और आसान कर दो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए तो तुम्हें पहले अपने माँ बाप को राजी करना होगा। मालूम ये हुआ कि जिसके माँ बाप राजी होते हैं, मैं बिला चूचरा ये कहता हूँ, समझ लो अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी उससे राजी है। एक आखिरी जुमला, मैंने पहले बताया मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर पाता, ना मैं ज्यादा सुनता हूँ ना ज्यादा सुनाता हूँ, थोड़ा ही सुनता हूँ, थोड़ा सुनाने की कोशिश करता हूँ। माँ बाप की दुआओं में अल्लाह ने इतना बड़ा असर रखा है, इतना बड़ा असर रखा है। आज हम चंद खिदमत कर देते हैं, मिसाल के तौर पर हाफिज जाकिर साहब चले, अच्छा वो हिसाब कर रहे हो, जब नीचे सर कर लेते हैं बुजुर्ग तो हम समझ जाते हैं किसी हिसाब में लगे हो। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर से सच्ची अकीदत अता फरमाए। मैं बयान ये कर रहा था, आज थोड़ी सी बंदा खिदमत कर लेता अपने माँ बाप की, दवा के लिए पैसे दे दिया, हज उमरा करवा दिए, थोड़ी सी खिदमत करा दी, तो बस बंदा हाफिज साहब ये समझता है अब तो मैं अपने माँ के हक से अदा हो गया। 4 लाख रुपए खर्च किए, हवाई जहाज का सफर करा दिया, उमरा करवा दिया, अब तो मेरे जिम्मे कोई काम बाकी नहीं रहा। सुन्नियों, तुम्हारे नबी का फरमान क्या है? अल्लाह अकबर। एक शख्स अपने माँ को अपने कंधे पर बिठाता है और कंधे पर बिठाकर पैदल हज बैतुल्लाह के लिए जाता, हवाई जहाज से नहीं भेजा। हवाई जहाज का सफर करवाकर हक से अदायगी की बात करने वालों नौजवानों, देखो पैदल कंधे पर बिठाकर हज बैतुल्लाह कराया। तवाफ मुकम्मल हुए, मीज़ाबे रहमत के करीब पहुंचा तो ज़हन में ख्याल आया कि अरे मैं तो अपने माँ को पैदल कंधे पर बिठाकर हज कराया, आज तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब तो मैं माँ के हुकूक से अदा हो गया हो। रब की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे परवरदिगार, क्या अब मैं अपने माँ के हक से अदा हो गया? अब मेरे ऊपर मेरे माँ के हुकूक नहीं रहे? ऐ मोरिया के हुसैनी गुलामों, रब की रहमतें जवाब देती है, बंदे अपने कंधे पर बिठाकर 7 मरतबे हज करवाया और मीज़ाबे रहमत के करीब हुकूक के अदायगी की बात करता है। ऐ नौजवान, कान खोल करके सुन ले, जब तेरी माँ ने तुझे पैदा किया था, तवज्जो दे, जब तेरी माँ ने तुझे पैदा किया था, तेरी विलादत और पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ ने तकलीफ झेली थी, अभी उन तकलीफों में से एक हिस्सा भी तुमने अदा नहीं किया। सीने पर हाथ रखो और सोचो, दवा के लिए 1000 रुपए दे दिए तो हमने अपने माँ के हक को अदा कर दिया। और अगर गुलाम अहमद रजा जैसा कमीना माँ के हुकूक से तकरीर कर दे तो लोग हाफिज जाकिर साहब से कहते हैं आपने तो नहीं बताया था कि माँ के ताल्लुक से बोलते हैं। जरा सोचो, माँ बाप कितने अजीम नेमत है। माँ अगर दुआ कर दे तो ये उलमा बैठे हैं, किताबों में आता है कि माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह बेटे का हश्र मूसा कलीमुल्लाह के साथ करता है। अगर गलत कहूं तो जो चोर की सजा वो गुलाम अहमद रजा की। माँ अगर दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे को वलीये कामिल बना देता है। माँ अगर दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे की परेशानियों को दूर कर देता है। इसलिए नौजवानों में अक्सर कहता हूँ कि कोई खुश रहे ना रहे, लेकिन तुम अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखो, इसलिए कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश रहेंगे और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआएं करते रहेंगे तो कोई माने या ना माने, गुलाम अहमद रजा का ईमान और अकीदा है कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ करेगी तो तुम दुनिया के जिस कोने में रहोगे, दुनिया के जिस खित्ते में रहोगे,
कसम खुदा की कामयाबियां तुम्हारी कदम चूमती हुई नजर आएगी, कामयाबियां तुम्हें मिलती हुई नजर आएंगी, इसलिए कि जिसके पास माँ बाप की दुआएं होती है अल्लाह ताला उसी बेटे को कामयाबी अता फरमाता है। आज लोग कहते हैं हजरत बहुत कमाता हूँ बरकत नहीं होती, पैसा आया कहाँ चला गया मालूम नहीं होता, पता नहीं चलता कहाँ चला गया। आज से गुलाम अहमद रजा के ये जुमले सख्त ये दिल पर नोट कर लो, अगर कोई गलती हो गई है तो आज भी सवेरा है। बुजुर्गों ने एक कहावत कही थी कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम में वापस आ जाए तो उसे भूला पार्टनरशिप में बयान हो जाए, बोल दे मोहब्बत से नहीं कहते हैं। अभी भी सवेरा है, अभी भी सवेरा है। आज भी अपने माँ बाप के कदमों को पकड़ लो और कहो अम्मा अब्बू हमसे गलती हो गई है, मैंने आपकी ये गुस्ताखी कर दी है, आप मुझे खुदा के लिए माफ कर दे। कसम खुदा की जब तुम्हारी माँ तुझे माफ कर देगी तो अल्लाह की रहमतें भी तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगी। जनाजे में हमारे हाफिज अख्तर साहब ने एक ऐसा जुमला कहा था कि हुकूक दो है, एक अल्लाह का एक बंदे का। बंदा अपना अल्लाह अपना हक तो माफ कर देता है लेकिन बंदों का हक अल्लाह माफ नहीं करता। कम पढ़ा लिखा हो, इस्लाह की जरूरत होगी तो आप इस्लाह करिएगा। बंदे का हक अल्लाह माफ नहीं करता। कब तक किताबों में आता है जब तक वो बंदा माफ ना करे। चूंकि आपने तकलीफ हाफिज अख्तर को पहुंचाई है और आप अपने सर को रात दिन औंधा के मस्जिद में पड़े रहे, रब की बारगाह में अर्ज करते रहे मौला मेरी गलती को माफ कर दे। किताबें बताती परवरदिगार आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि जब तक बंदा माफ नहीं करेगा जब तक उसे अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता है। तो अगर तुमने तकलीफ अपने माँ को दिया हो और इमाम साहब का पैर दबाकर सोचोगे कि शायद माँ का हुकूक हमसे उतर जाए या माँ की जो मैंने नाफरमानियां की है वो अल्लाह माफ कर दे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। पहले तुम अपने माँ को राजी करो, जब तुम्हारी माँ राजी होगी तो अल्लाह उसका हबीब भी राजी हो जाएगा। मैंने एक जुमला कहा था कि माँ अगर दुआ करे तो अल्लाह बेटे को वली बनाता है। तो वक्त की नमाज पढ़कर जन्नत की ठेकेदारी करने वालों, तो वक्त का सजदा करकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, क्या तुमने समझ रखा है अपने माँ बाप को? कसम खुदा की माँ अगर दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे को वली बना देता है। आप कहोगे गुलाम अहमद रजा इसकी दलील क्या है? तो मखदूम सिमना का फैजान लेते हुए आगे बढ़ता हो, तारीख की वरक गर्दानी करो। आज भी किताबों के अंदर ये वाकया सुनहरे हर्फों की तरह चमक रहा है कि नौजवानों अपने माँ बाप की खिदमत से गाफिल न रहो। वक्त में तारीख में किताबों में एक ऐसा वाकया मिलता है, एक अल्लाह के वली है वली जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हु। बड़ा मशहूर वाकया है, ये उलमा बैठे। हजरत बायजीद बुस्तामी जो दर्जे विलायत पर फाइज है, अल्लाह ने दर्जे विलायत का मनसब आपको अता फरमाया है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते एक मर्तबे सर्दी का जमाना था, सख्त सर्दी पड़ रही थी और मैं अपने मकान के अंदर लेटा हुआ था। इत्तेफाक रात की तारीकियों में मेरी माँ की आंख खुल गई। मेरे घर में मेरी एक ज़ईफ़ा माँ थी, बूढ़ी माँ थी, उनकी आंख खुल गई और उन्होंने आंख खुलते ही फरमाया बेटा बायजीद मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। माँ की मोहब्बत का दम भरने वालों, माँ की मोहब्बत के नारे लगाने वालों, माँ की उल्फत का नारा लगाने वालों, नारा लगाना तो बहुत आसान है, जुबान से कह लेना तो बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। आज के दौर में अगर ज़ईफ़ बाप रात की तारीकियों में अपने बेटे को आवाज दे दे बेटा दवा की जरूरत है, सख्त सर्दी लग रही है, चाय पिला दो, तो बेटे के बोलने से पहले बहू बोलती है क्या अब्बा दिमाग खराब रखा है आपने, दिमाग को बिल्कुल खराब करके रख दिया है,
ये रात में चाय पीने का टाइम है, ये रात में पानी मांगने का टाइम है। आप भी परेशान रहते हो, मुझे भी परेशान करते हो, लेकिन ऐ मवैया के हुसैनी गुलामों, हजरत बायजीद बुस्तामी की अकीदत देखो, हजरत बायजीद बुस्तामी की अपनी माँ से मोहब्बत देखो। फरमाते जब मेरी माँ के ये जुमले मेरे कानों तक पहुंचे और ये आवाज मेरी परदेश समाज से टकराती है तो मैं फौरन उठ करके अपनी चरपाई से खड़ा हो गया, लिहाज को अलग कर दिया, और जब घर के उस मकाम पर पहुंचा जहां पानी रखा जाता था तो ज़ाहिर इत्तेफाक मेरी निगाहों ने क्या देखा कि उस दिन मेरे घर में पानी मौजूद ही नहीं था। अल्लाह अकबर, आज से कुछ 100 साल पहले का जमाना देखो, पानी की इतनी अफरात नहीं थी, मोहल्ले में शायद एक आध नल या एक आध कुआं होता था तो पूरा मोहल्ला वहीं से पानी लाया करता था। आज तो मॉडर्न दौर है, तरक्की याफ्ता दौर है, हर घर में नल और समरसेबल लगे हुए हैं। हमारी माँ बहनें एक गिलास पानी लेना होता है हाफिज साहब तो नल नहीं चलाती बल्कि बटन को ऑन करती है। एक गिलास पानी लेना है, 2 बाल्टी पानी फजूल बह रहा है। पूछो ये उलमा से, अगर आप पानी फजूल बहाते हो तो उसका भी हिसाब देना है जरूरत के लिए। अब ऐसा नहीं कि आपको नहाना है तो आप नहाए नहीं, जरूरियातें जिंदगी जितने पानी में हो जाए आप कोशिश करो उतना ही पानी खर्च करो। एक गिलास पानी गिलास में है, 3-3 बाल्टी पानी गाली में जा रहा, क्योंकि अब चलाना तो है नहीं। जब मेहनत करना होता था तो आधा गिलास निकालना पहाड़ होता था। हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह अकबर फरमाते जब मैं वहां पहुंचा तो पानी था ही नहीं, लेकिन अब माँ की मोहब्बत है, माँ ने पानी तलब कर लिया है, मैं नहीं कहता। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मैंने पानी का प्याला लिया और दूर दराज का सफर कर दिया। नौजवानों सोचो, आज बगल में पानी रखा हो देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी है रात में सफर कर देते हैं, इसलिए कि माँ ने पानी मांगा है, हमें अपने माँ के प्यास को बुझाना है। दूर निकल जाते हैं पानी लेने के लिए, और जब वहां से पानी लेकर लौटे तो थोड़ा देर हो गई, लेट हो गया आने जाने लाने में। मैं नहीं कहता, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं जब मैं माँ के चरपाई के करीब पानी का वो प्याला गिलास लेकर पहुंचा तो मेरी निगाहों ने क्या देखा कि माँ को दोबारा नींद आ गई है, फिर मेरी माँ नींद की आगोश में जा चुकी है। आज का नौजवान होता तो पानी ताक पर रखता और झट से वो भी लेट जाता, लेकिन अल्लाह अकबर ऐसी मोहब्बत हजरत बायजीद बुस्तामी को है कि पानी का प्याला लेकर माँ के चरपाई के सराहने, सर्दी में ठंडी में एकदम बिल्कुल कड़ाके की ठंड हो रही है, पानी का प्याला लेकर खड़े हैं। इतनी देर तक खड़े रहे, इतनी देर तक खड़े रहे, इतनी देर तक खड़े रहे, इतनी देर तक खड़े रहे। अच्छा ये खड़े क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर मैं पानी का प्याला रख करके लेटूंगा तो हो सकता है नींद आ जाए, सो जाऊं और फिर पता नहीं कब मेरी माँ पानी मांगे और मैं उन्हें वक्त से पानी न दे सकूं। इसलिए चरपाई के करीब खड़े रहो, जैसे ही मेरी माँ पानी तलब करेंगी तो मैं उन्हें पानी का प्याला दूंगा, पी लेंगी, प्यास बुझ जाएगी। किताबों में आता है इतनी देर तक खड़े रहे कि सुबह फजर का टाइम हो गया। कहना बड़ा आसान है, हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इसलिए नौजवानों फजर का टाइम हो गया था और जब माँ फजर की नमाज के लिए बेदार हुई तो देखा बायजीद पानी का प्याला लिए खड़े। अल्लाह अकबर, माँ की ममता तड़प गई, माँ की मोहब्बत जोश करती है। अभी आपने देखा बेहतरीन अशार मुझे कुछ याद नहीं है, माँ के हवाले से पढ़े गए। जरा सोचो, माँ ने जब आंखें खोली तो बायजीद सामने, हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा फरमाती है मेरे लाल, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्तू जिगर, ऐ मेरे दिल का चैन, इस सर्दी में पानी का प्याला लेकर खड़े होने की जरूरत क्या थी? ऐ मेरे लाल, अगर मैंने पानी मांग लिया था और दे नहीं पाए टाइम से तो
पानी रख करके आराम करते, जब मांगती तो पेश कर देते। अरे मवैया के हुसैनी गुलामों, एक बेटे का जुमला माँ की मोहब्बत के सुनो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत बाजीद बुस्तामी अर्ज करते, अम्मी जान तरीका वसूल ज़ाबता तो यही कह रहा था कि मैं पानी का प्याला रख करके आराम करता, लेकिन ये मेरी मोहब्बत है, मोहब्बत, ये मेरा प्यार है, प्यार, ये मेरा इश्क है। मैंने सोचा कि अगर पानी का प्याला रख करके लेटूंगा तो सो जाऊंगा, पता नहीं कब आप पानी का प्याला मांगे और मैं दे ना पाऊं, इसलिए मैंने आज के रात के सोने को तर कर दिया और आपके चरपाई के करीब खड़ा रहा कि जैसे मेरी वालिदा पानी मांगेंगी पेश कर दूंगा। जब माँ ने बेटे की इस मोहब्बत को देखा तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, आपकी वालिदा रोने लगी, आंखें अश्कबार हो गई और रोते रोते माँ के हाथ बारगाहे खुदाबंदी में बुलंद होते हैं और रात की तारीकियों में माँ ने अपने कांपते हुए हाथ को रब की बारगाह में बुलंद करके ये दुआ किया है, मेरे परवरदिगार, अगर मेरा बेटा बाजीद मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, वाकई मेरे बेटे के दिल में मेरी इतनी मोहब्बत है, तो मैं इसके बदले में तेरी बारगाह से कुछ नहीं मांगती। हाँ हाँ, सिर्फ अपने बेटे के लिए दुआ करती हो कि आने वाले वक्त में मेरे बेटे को दर्जे विलायत पर फाइज कर देना, मेरे बेटे को दर्जे विलायत अता कर देना। आज भी आप दारुल उलूम लतीफिया फैजान सुन्नत में पहुंचे और ये मुशाहिदे मिल्लत का गुलाम आज भी ये वाकया किताबों में आपको दिखा सकता है। हजरत बाजीद बुस्तामी फरमाते, बस माँ की दुआओं का असर है जो अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा मकाम दिया, इसमें अपना कोई रोल नहीं है, बस ये मेरी माँ की दुआओं की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे दर्जे विलायत पर फाइज कर दिया। अभी भी नहीं समझोगे, माँ दुआ कर दे तो बेटा वली बन जाए, और अगर तुम माँ की खिदमत करोगे तो यकीनन तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश रहेंगे। और सुन लो फिर, जिसके माँ बाप खुश रहते हैं, कसम खुदा की अल्लाह उसका रसूल भी खुश रहा है। इसलिए ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बाप था। मौला ताला मेरे कहने में, बोलने में, यहाँ आने में, बैठने में, यहाँ से जाने तक अगर किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो तो सरकार मखदूम सिमना के सदके माफ फरमाए और हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी, हुजूर की मोहब्बत में खात्मा बिल खैर अता। जी, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला